Good day to all of you and a very warm welcome to my channel. I am Harita Sadrani. Hope you all are able to understand what I am explaining. Now, let us start with our State Board 4th Standard History subject. Lesson number 2, Work of the Saints. In the first part of this lesson, I have explained you about Sri Chakradhar Swami, Santa Namdev, Santa Jnaneshwar. All of them had spread the message of equality, humanity, brotherhood, service, charity, help to poor and those who are in need. They were against of the discrimination based on caste, birth. No one was poor and rich. They taught the people that all are equal in the eyes of God and have faith in God. Now let us move ahead and read the information about the other sons given in this textbook. Santa Eknath. Santa Eknath carried on the work started by Santa Namdev and Santa Jnaneshwar. He lived in Paitan. He preached that the way to reach God was through devotion, Bhakti Marga. He wrote numerous religious songs, Abhangas, Ovis, and Bharud. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. His love extended even to the dumb animals. He exhorted the people to love all living beings and practice what he preached. One day he was going to the river Godavari for a bath. It was noon and very hot. The sand bed along the riverside was very hot too. He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand. Eknath looked around and saw the child. He rushed to him and looked around for the child's parents. He picked up the child in his arms, wiped his tears, and reached him home. In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the minds of the people. Santa Eknath. This is a picture of Santa Eknath given in your history textbook. I will just explain you what I have read just now. So Santa Eknath also passed on the same message, or he also preached the same way of devotion, the same way of showing kindness, love to all human beings, the way did by Santa Namdev and Santa Jnaneshwar. Santa Eknath came from the village Paitan in Maharashtra. Santa Eknath thought the devotion is through Bhakti Marga. Bhakti Marga means, we can say in English, way of devotion, Bhakti Marga. Santa Eknath also wrote numerous religious songs like Abhangas, Ovis, and Bharud. These are all the religious songs based on a theme, religious theme, which give a social message to the people and also create an general awakening among the people. Santa Eknath's written many Bharud and they are very famous. And all these Abhangas, Ovis of all the sons are not only famous at that time in those days, but also they are
famous even in today's time. The famous Bharud of Sant Eknath, just one which I know, I will try to टेल यू दैट कि आपको उसका फिर अंदाज़ आएगा कि भारूड क्या होता है, ये अभंग क्या होता है, जो महाराष्ट्रन नहीं है या जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एक उनका भारूड है जो बहुत ही फेमस है, जितनी 4 लाइन मुझे आती है मैं आपको सुना सकती हूँ। अग ग ग ग ग विंचू चावला, काय बाय सांगू विंचू चावला, कोणाला सांगू विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला हो। दिस वॉज अ भारूड। इसका ये 4 लाइन मुझे आती है। ओके, सो दिस भारूड, दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स दे यूज टू राइट। Sant Eknath also taught the people not to show any distinction among people, or not to have any kind of distinction based either on caste, on religion, on birth, status, rich or poor. Sant Eknath made friends with poor and down-torrents. Down-torrent means those who are poor, those who are ill, जिनके पास पैसे नहीं है, जो परिस्थिति के आगे हार गए हैं, जिन्होंने परिस्थिति के आगे हार मान ली है, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने मित्रता की। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने की है, राइट, वैसे ही इन्होंने भी मित्रता की। और इन्होंने सबसे यही कहा कि भगवान पे आप विश्वास रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। संत एकनाथ not only showed his love to the ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के प्रति कि उन्होंने अपने प्रेम और आदर को नहीं दिखाया, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी हम्बल टू दी डम एनिमल। वो बेजुबान जानवरों के प्रति भी उतने ही दयालु थे, राइट। ही exhorted the people to love all living beings and practice what he preached. Exhorted means क्या, उन्होंने बहुत ही लोगों से विनती की और या फिर लोगों को बताया, जोर दिया कि आपको सभी लोगों से प्यार करना चाहिए। बहुत बोलते ना एकदम इससे कहना कि प्लीज़ आप लोगों से प्यार कीजिए, आप लोगों को साथ में लेके चलिए। फोर्सफुली कहा, ओके, जोश के साथ कहा उन्होंने। और वो वही चीज़ें भी खुद की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते थे। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कुछ और कर कुछ और रहा हूँ। उन्होंने जो लोगों को कहा वो अपनी ज़िंदगी में खुद भी करते थे। दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी विच आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। वन डे Sant Eknath was going for a bath in river Godavari. It was a afternoon and a very hot afternoon. Because of that, the banks of river Godavari were very hot. The sand was very hot. Suddenly he heard a cry of a small child. He looked around and he found a small child sitting at the banks of river Godavari in that hot sand, crying. He looked around for his father and mother. Parents के लिए उन्होंने भाग देखा लेकिन कोई नहीं दिखा. Without wasting a time, he just rushed to that child and he picked up the child in his hand. उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि ये बच्चा जो है वो किसका है, किस जाति का है, किस धर्म का है, नहीं सोचा। क्या ये अमीर है, क्या ये गरीब है, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने यही देखा कि ये एक बच्चा अकेला है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत है, तो उसे हमें पहले सहारा देना है। तो सबसे पहले उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे शांत करवाया और फिर उसे अपने माँ बाप के यहाँ पर लेके गए। तभी जब संत एकनाथ जी थे या जो बाकी के संत थे, तभी महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही बुरी प्रथा चल रही थी, जिसे हम बोल सकते छुआछूत की प्रथा। जो छोटी जाति के हैं उनको दूर रखा जाता था, अलग रखा जाता था ब्राह्मण्स और क्षत्रियों से। उनको एक दूसरे के साथ, मतलब जो छोटी और शूद्र जाति के हैं उनको मंदिरों में अलाउड नहीं था। वो नॉर्मली यहाँ वहाँ गांव में नहीं जा सकते। वो एक
उनके लिए एक छोटा सा एरिया रखा था जहाँ पर ही वो रहेंगे, लेकिन वो सभी काम करेंगे, काम सब करेंगे, लेकिन उनको अलग रखा जाता था सोसाइटी से। तो तभी के जो पंडित थे उन्होंने देखा, जो भी पंडित या साधु संत गोदावरी नदी पे नहाने आए थे, उन्होंने देखा कि अरे ये संत एकनाथ जो ये पंडित है, ये इन्होंने इस बच्चे को कैसे उठा लिया हाथ में, बिना इसकी जात धर्म की जाने बिना कैसे उठा लिया, राइट। तो ये सब बहुत ही आश्चर्य थे। देखो इनके फेस को अगर आपने ध्यान से देखा तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड, ओके ये ऐसे कैसे उठा सकते। तो इस एग्जाम्पल से या इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि संत एकनाथ जी ने ऐसे कई पर्सनल एग्जाम्पल रखे हैं लोगों के सामने कि जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो मैं बोलता हूँ या जो मैं आपको बोलता हूँ करने के लिए, वो मैं खुद भी करता हूँ। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी एंड संत एकनाथ impressed a message of love and equality on the minds of people. एक और स्टोरी है, छोटी सी है, मैं बताती हूँ। संत एकनाथ जी बहुत शांत, सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। उनको गुस्सा बहुत कम आता था। तो एक दिन एक मनुष्य ने या एक इंसान ने उनकी परीक्षा लेनी सोची। जो उस ज़माने के जो पंडित होंगे या जो उनके अगेंस्ट होंगे, उस एक मनुष्य ने उनकी परीक्षा लेनी सोची। संत एकनाथ अपने नित्य नियम की तरह गोदावरी में नहाने गए। नहा के जैसे ही बाहर आए, उस मनुष्य ने उनके ऊपर थूक दिया। संत एकनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, वो फिर से गोदावरी में गए, नहा लिए और वापस बाहर आए। फिर से उस मनुष्य ने उनके ऊपर थूक दिया। ही स्प्लिटेड ऑन हिम, वन नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, नॉट ओनली 1 टाइम बट 17 times he did the same thing. But Sant Eknath did not say a single word to him. At last, that person felt guilty. उसको अपनी आप पे शर्म आने लगी और उसने संत एकनाथ जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, मैंने आप पे इतनी बार थूका लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, आप चुपचाप जाके नहा के वापस आए। तो संत एकनाथ जी ने कहा कि ये ठीक है कि आपने मुझ पे थूका, नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ में मुझे आपने एक पुण्य काम करने का मौका मिला है आपकी वजह से। वो है क्या कि मैंने आज के एक ही दिन में गोदावरी में 17 times नहाया हूँ मैं। आई हैव टुक बाथ इन द रिवर गोदावरी, इन द होली रिवर गोदावरी, not only once but 17 times, and because of this I have gained more purity in me. मैं बहुत पवित्र हो चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत पवित्रता मैंने अपने अंदर ले ली है। सो आई शुड बी थैंकफुल टू यू। तो संत एकनाथ जी ने उसकी ही क्या मांगी, उससे ही उसका ही आभार प्रकट किया, उससे ही उसको ही कहा कि आई एम थैंकफुल टू यू। इसी के कारण जो मनुष्य उनके पास बहुत ही गलत विचारों से आया था, वो संत एकनाथ जी का फॉलोवर हुआ। तो संत एकनाथ जी जो करते थे, जो बोलते थे, वही अपने पर्सनल ज़िंदगी में भी फॉलो करते थे। ओके, नेक्स्ट संत इज संत तुकाराम। Two great saints, Tukaram and Ramdas, lived in Shivaji's time. Tukaram came from Dehu, near Pune. He owned a farm and also a grocery shop. His forefather used to lend money to the needy people, but Tukaram drowned in the village Indrayani all the records of loan papers he had, thus giving relief to many. He would go to the neighboring hills and sing songs in praise of God Vittal. On the 11th day, Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to Pandharpur. He wrote devotional songs, abhangas, and performed kirtans. Thousands flocked to listen to him. Shivaji Maharaj also attended his kirtans. Sant Tukaram preached to the people about the virtues of pity, forgiveness,
and peace of mind. He also gave them the message of equality. He alone is a sant, and God reveals him with him who call the weak and the downtrodden as his own. He impressed this truth on the minds of people. He made them minds of people. He made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba Tukaram, the name of two great saints. Sant Jnaneshwar is called Gyanba also. Even today, Tukaram Gatha is read in every household. Santa Tukaram. So this is the picture of Santa Tukaram is given in your textbook. See this image very properly. Can you see here? Who is this? Yes, you are right. Shivaji Maharaj. Okay. So Santa Tukaram and Santa Ramdas are these two Sant who lived at the time of शिवाजी महाराज. ये दो सेंट ऐसे थे जो शिवाजी महाराज जब थे तब उनके टाइम पे वो थे. ओके, दे वर द टू सेंट्स हु वर एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज. संत तुकाराम केम फ्रॉम द विलेज देहू इन महाराष्ट्र नियर पुणे. संत तुकाराम ऐसे तो बहुत वेल टू डू फैमिली से थे, अच्छे हम बोल सकते हैं धनी फैमिली से थे वो, वेल टू डू फैमिली, बिकॉज उनके पास एक खेती थी और एक वो ग्रॉसरी शॉप मतलब एक किराने का दुकान था. उनके जो फोर फादर्स मतलब उनकी जो दादा परदादा थे उनका क्या बिजनेस था वो लोगों को मनी लेंड करते थे पैसे. मनी लेंडर थे वो, मनी लेंडर. जिनको भी पैसे की ज़रूरत होती थी वो उनको उधार पे पैसे देते थे. राइट. बट संत तुकाराम नेवर लाइक दिस. उनको ये बात पसंद नहीं थी कि गरीब है जो पहले से दुख में है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको आप पैसे दे रहे हो बट रिटर्न लेते समय आप उनसे ज़्यादा पैसे लेते हो, इंटरेस्ट. राइट. सो इससे छुटकारा पाने के लिए व्हाट ही डिड, उन्होंने जितने भी लोन के कागज़ थे, ओके, लोन पेपर्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब इंद्रायणी नदी में डुबा दिए. ड्रॉन इन द रिवर ऑफ इंद्रायणी द रिकॉर्ड्स ऑफ द लोन पेपर ही हैड, दस गिविंग रिलीफ टू मैनी. और ऐसे करने से उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक क्या बोलते हैं बहुत बड़े कर्ज से या बहुत बड़ी बोझ से राहत मिल गई. संत तुकाराम जो थे उनको अच्छा लगता था भगवान के गाने गाना, भगवान के लिए कुछ 4 पंक्तियाँ लिखना. तो वो हमेशा नज़दीक के पहाड़ पे जाते थे, नेबरिंग हिल्स, एंड ही वेंट टू द नेबरिंग हिल्स एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स टू इन प्रेज ऑफ गॉड विठल. एंड ऑल्सो ही वेंट टू पंढरपुर on Ekadashi, the 11th day of the month Ashad and Kartik. These are 2 Hindu months. In this Hindu month के अनुसार जो एकादशी होती है 11th day, उस दिन वो हर इन 2 महीनों में जाते थे पंढरपुर. He also wrote many songs like Abhanga and performed kirtans. Thousands of the local people gathered around him to listen his kirtans and Abhanga. Even the Shivaji Maharaj also attended many of his kirtans. You know one thing, शिवाजी महाराज के जो धार्मिक गुरु, जो स्पिरिचुअल गुरु थे, वो थे तुकाराम महाराज. ओके, वो थे संत तुकाराम. इसीलिए शिवाजी महाराज बहुत बार उनके कीर्तन सुनने के लिए भी जाते थे. संत तुकाराम also preached people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind. उन्होंने भी लोगों को
दया, माफ़ी, या दया माफ़ी, या बोल सकते हैं हम लोग कि किसी को ये करना, छोड़ देना, माफ़ कर देना, किसी को गलती की सज़ा नहीं देना, उसको समझाना। ओके, पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को शांत रखो। एंड ऑल्सो ही गेव अ मैसेज ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने सभी लोगों से ये कहा, वॉट ही सेड, ही अलोन इज अ सेंट एंड गॉड डिविल्स with him who calls the weak and the downtrodden as his own। उन्होंने लोगों को क्या कहा, वही इंसान संत है जो वही इंसान संत है, और भगवान भी उसी को चाहता है या उसी को अपना समझता है जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो डाउन टोरेंट है, जो किसी मुसीबत में है, उनकी वो मदद करता है। भगवान उसको अपना मानते हैं, राइट। उन्होंने लोगों को ये कहा। अगर आपको लगता है कि भगवान हम पे प्रसन्न हो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दूसरों की मदद करनी है। जो पीड़ा में है, जो दुख में है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनको आपको मदद करनी, ऐसे संत तुकाराम ने कहा। उन्होंने हमेशा लोगों को यही समझाया कि आप यही बात दिमाग में रखिए कि आपको अपना जो रिलीजन है, अपना जो धर्म है, उसको पकड़ के रखना है, राइट, और लोगों को प्रेम देना है। उनकी इसी बात से बहुत सारे लोग क्या हुए, उनके फॉलोअर्स हुए, और उनके ऊपर अपना मतलब उनको मानने लगे, उन पे प्रेम करने लगे। किससे? संत तुकाराम से। इवन टुडे ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर द पीपल प्रोक्लेमिंग ज्ञानबा तुकाराम। ये दो नाम आज भी हम सुनते हैं जो महाराष्ट्र में बोले जाते हैं। हर कीर्तन में, हर अभंग में, हर ओवी में कहीं ना कहीं ये दो नाम आते ही है। इसमें से जो ज्ञानबा है स्टैंड्स फॉर संत ज्ञानेश्वर, जिनको ज्ञानबा करके प्यार से भी लोग बुलाते थे। ओके, तो इन दोनों के नाम आज भी बहुत प्रेम और आदर से लिए जाते हैं। संत तुकाराम रोट अ बुक कॉल तुकाराम गाथा, जो आज भी बहुत सारे घरों में पढ़ी जाती है या पूजी जाती है। जैसे ज्ञानेश्वरी की लोग पूजा करते हैं, गीता की पूजा करते हैं, ओके, वैसे ही तुकाराम गाथा की भी पूजा की जाती है। ओके, एक स्टोरी है, अगर आपने पिक्चर देखा तो यहाँ पर शिवाजी महाराज बैठे, एक स्टोरी है, राइट। मुझे जितनी आती है मैं आपको बताती हूँ। एक दिन शिवाजी महाराज पे मुग़लों ने आक्रमण किया, और मुग़लों को पता था कि शिवाजी महाराज जो थे संत तुकाराम जो उनके गुरु हैं, उनका कीर्तन सुनने जा रहे हैं, राइट। तो मुग़लों ने सोचा कि शिवाजी महाराज को उधर ही हम पकड़ेंगे, उनके दुश्मनों ने, राइट, कि हम उनको उधर ही पकड़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सिपाही या सैनिक नहीं होंगे, तो वहाँ पर शिवाजी महाराज को ट्रैप करना या पकड़ना आसान होगा, राइट। तो ये बात शिवाजी महाराज के कान पे पड़ी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वो वहाँ से भाग नहीं सकते, और शत्रु ने अगर उनको पकड़ लिया तो बहुत संकट में आ जाएंगे वो। इसीलिए उन्होंने ये बात अपने गुरु तुकाराम जी से कही। तो तुकाराम जी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ मेरे कीर्तन पे ध्यान दो, भगवान के नाम स्मरण पे ध्यान दो, बाकी कुछ मत सोचो। शिवाजी महाराज जी ने भी वही किया। ही फॉलोड वॉट हिज गुरु सेड। ही जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कीर्तन एंड स्टार्टेड टेकिंग द नेम ऑफ द गॉड। क्या चमत्कार हुआ पता है? जितनी भी कॉमन पब्लिक थे जो कीर्तन सुनने आए थे, सभी शिवाजी महाराज जैसे दिखने लगे। जैसे ही मुग़ल अंदर आए, जैसे ही मुग़ल सेना अंदर आई शिवाजी महाराज को पकड़ने, उन्होंने देखा कि हर कोई शिवाजी है, हर कोई शिवाजी है। उनको भ्रम हुआ, उनको एक भ्रम या उनके आँखों के सामने एक ऐसा दृश्य निर्माण हुआ जिसमें सभी उनको शिवाजी दिखने लगे। अब उनका सिर चक्कर खाने लगा कि इसमें से शिवाजी कौन है। वो नहीं पकड़ पाए, एक को पकड़ते थे, जैसे ही पकड़ा वो नॉर्मल होता,
दूसरे को पकड़ते वो नॉर्मल होता। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि असली शिवाजी कौन थे, और इसी भ्रम का फ़ायदा शिवाजी महाराज ने उठाया और वो चुपके से वहाँ से भाग गए और शत्रु से बच गए। ठीक है, तो ये स्टोरी जितनी मुझे पता थी मैंने आपको बता दी, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट संत रामदास। The next sant is Samartha Ramdas. At the same time, the hills and the valleys of Maharashtra were filled with the echoes of Jai Jai Raghuveera Samartha. Glory be to the great Rama, and invocation constantly on the lips of the great saint Ramdas. Ramdas was born at Jam on the banks of the Godavari in Marathwada. His birthday falls on Ram Navami, the day on which great hero Rama was born. Narayan was his real name, but he preferred to call himself Ramdas, the servant of Rama. Through his great book Dasbodh, he taught men the ways of good life. Through his Manache Shlok stanza addressed to the mind, he gave people lessons in good thoughts and good conduct. To popularize the worship of strength, he raised the temple of Hanuman, the god of strength. He exhorted people to be strong and told them of the power that resides in a united people. He taught them to organize themselves and fight against injustice. This gave courage to the people. The work of the saints brought about a great awakening among the people. Religion once again became a thing to be respected, and a spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. This great awakening among the people, brought about by the saints, helped Shivaji in his fight for Swaraj. Before I explain you about Santa Ramdas, the Samartha Ramdas, I would like to tell one small story about Santa Tukaram, which I have heard from my grandparents and also seen in Marathi movie Santa Tukaram. Very old movie, black and white movie है, बहुत पुरानी है, ओके। सो तभी का वो एक स्टोरी है। संत तुकाराम इतने ग्रेट थे या इतने महान संत थे कि खुद स्वयं विष्णु भगवान स्वर्ग से नीचे आए उनको अपने साथ लेके जाने के लिए। संत तुकाराम किसके भक्त थे? संत तुकाराम विट्ठल जी के, और विट्ठल जी विष्णु का ही एक रूप थे, विष्णु का ही एक रूप थे, राइट। तो स्वयं विष्णु भगवान आए उनको नीचे धरती से ले जाने के लिए और उनको वैकुंठ में लेके गए। वैकुंठ मतलब जहाँ पर विष्णु जी का स्थान है, विष्णु जी का घर है, मराठी में उसे वैकुंठ कहा जाता है। तो ये स्टोरी मैंने सुनी थी तो मैंने आपको बता दी। मतलब उनकी ग्रेटनेस कितनी थी कि खुद भगवान उनको आए नीचे धरती पर और अपने साथ लेके गए। वो अपने गरुड़ पे बैठ के आए थे, वो सीन मुझे अभी भी याद है। बहुत बड़ा गरुड़ जैसे उस पर बैठे थे भगवान और तुकाराम जी को अपने साथ लेके गए वैकुंठ में, ओके। सो नाउ लेट्स me explain you about Samartha Ramdas. So Samartha Ramdas also belonged to Maharashtra. He came from the village Jam, which is on the river Godavari in Marathwada. Marathwada is a region in Maharashtra. Samartha Ramdas always, वो हमेशा एक उच्चारण करते रहते थे, भगवान का नाम लिया करते थे, और वो था जय जय रघुवीर समर्थ। Samartha Ramdas lived at the time of शिवाजी महाराज। वो शिवाजी महाराज जब थे तब समर्थ रामदास थे।
ही वॉज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ शिवाजी महाराज, राजनीतिक गुरु थे। जब भी उनको राजनीति, शिवाजी महाराज को राजनीति से लेकर या जो कुछ भी सलाह लगती थी तो वो समर्थ रामदास जी से सलाह मशवरा करते थे। तो ही वॉज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ शिवाजी महाराज। टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने अपने आप से आपको बोला ये। तो तभी जो महाराष्ट्र की वैलीज थी, जो भी पहाड़ थे, या महाराष्ट्र का पूरा रीजन में एक आवाज़ गूंजती थी, इको आवाज़ गूंजती थी, वो थी जय जय रघुवीर समर्थ। इसका मतलब क्या? रघुवीर मतलब भगवान राम, रघुवीर भगवान राम, द ग्रेट लॉर्ड भगवान राम, ओके, गॉड भगवान राम। तो वो हमेशा ये मंत्र बोलते थे। अब उनके नाम के पीछे छुपी हुई ही एक स्टोरी है। समर्थ रामदास born on the date of Ram Navami, and Ram Navami is a birthday of great God Rama, right? The original name was नारायण, उनका रामदास जी का ओरिजिनल नेम था रामायण, बट उनको अच्छा लगता था कि लोग उन्हें रामदास करके बोले। वाई? बिकॉज वो राम के परम भक्त थे, एंड रामदास मीन्स सर्वेंट ऑफ रामा, राम भगवान के सेवक, सर्वेंट ऑफ रामा। इसीलिए उनको खुद को नारायण बोलना पसंद नहीं था, उनको खुद का नाम क्या बोलना पसंद था? रामदास, राम के सेवक, सर्वेंट ऑफ राम। समर्थ रामदास हैज़ रिटन 2 outstanding books. One is Dasbodh and one is Manache Shlok. In Dasbodh, he has mentioned or he has written how to live a better life. हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छी तरीके से जी सकते हैं। जैसे इन नॉर्मल सेंस हम बोल सकते हैं गुड बिहेवियर, एथिक्स, गुड हैबिट्स, ये उन्होंने दासबोध में लिखा है। और तभी ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि तब ही उस ज़माने में ये सब पीछे छूट रहा था, लोग इसके बारे में भूल रहे थे कि कैसे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। व्हाट आर द एथिक्स ऑफ द लाइफ, व्हाट आर द गुड हैबिट्स, व्हाट आर द गुड मैनर्स that we have to follow in our life. Manache Shlok are the stanza that address the mind. Manache Shlok ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। These are the small stanza और like कबीर के दोहे, 2-2, 3-3 लाइन के, हाँ, तो ये भी 2 या 3 लाइन के स्टैंजाज थे जिसमें उन्होंने अपने मन को एड्रेस किया। मन से कहा, मेरे मन तू ऐसे बिहेव कर, मन ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। वाई एड्रेस टू द माइंड और द हार्ट? बिकॉज अपना दिमाग और अपने जो हृदय है वही अपने पूरे बिहेवियर को, अपने पूरे थिंकिंग को, अपने पूरे नेचर को कंट्रोल करता है, राइट? इसीलिए उन्होंने ये मनाचे श्लोक लिखे। बहुत सारी जगह पर दासबोध की क्लासेस होती है जहाँ पे दासबोध सिखाया जाता है, राइट? महाराष्ट्र में मनाचे श्लोक बच्चे या बड़े सभी लोग इसका पठन करते हैं। आज भी महाराष्ट्र में हर घर में आपको बच्चों को मनाचे श्लोक सभी बोलते भी हैं। ये बहुत अच्छे हैं दोनों, ये दोनों बुक्स बहुत अच्छे हैं और मैंने भी बचपन में ये मनाचे श्लोक बहुत पढ़े हैं, राइट? सो अभी उन्होंने क्या लोगों को सिखाया वो हम देखेंगे। व्हाट प्रीचिंग ही डिड टू द कॉमन पब्लिक। उन्होंने सभी लोगों से क्या कहा? ही पॉपुलराइज्ड द वर्कशिप ऑफ स्ट्रेंथ to raise he raised the temple of God हनुमान। उन्होंने सभी लोगों में क्या पॉपुलर किया कि आप शक्ति की उपासना करो, वर्कशिप ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की उपासना करो। इसीलिए वो जहाँ जहाँ जिस किसी गांव में गए वहाँ पर उन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको दिखेंगे जो रामदास जी ने, समर्थ रामदास जी ने स्थापना की थी मंदिर की। अभी भी महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे, राइट? क्यों उन्होंने ऐसा किया पता है? क्यों? क्योंकि तब बहुत ज़रूरी था ये। तभी शिवाजी महाराज के टाइम पे शत्रु से लड़ने के लिए सेना की ज़रूरत थी और सेना कहाँ से मिलेगी? कॉमन पब्लिक। इसीलिए कॉमन पब्लिक को शक्ति की उपासना करने के लिए उन्होंने कहा ताकि वो पावरफुल बने, स्ट्रेंथ उनमें आ जाए और वो बने हेल्दी, और जिसके कारण वो आर्मी में या सेना में शामिल हो और शत्रु से वो लड़ सके।
यहाँ तक कि वो खुद की रक्षा भी कर सके। कोई अगर शत्रु उन पर अटैक करता है तो वो खुद की भी तो रक्षा कर सकते हैं। सेना में जाए या नहीं जाए वो अलग बात है, बट अपनी खुद की रक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि आप एक हेल्दी लाइफ जियो, स्ट्रेंथ जमा करो। और ऐसा भी है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ समर्थ रामदास जी ने हनुमान मंदिर की स्थापना की, उसके साइड में या उसके मंदिर को लग के ही उन्होंने व्यायामशाला की भी, व्यायामशाला मतलब जिम जिसे हम बोल सकते हैं, उसको भी उन्होंने, उसकी भी स्थापना की। मतलब जहाँ पर लोग आके एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं। कुश्ती बहुत फेमस गेम था तभी। ओके, हाँ राइट, ठीक है। और क्यों? ताकि लोग ये समझ जाए कि जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो उनके अंदर ही है और वो यूनाइटेड रहे। यूनाइटेड, जब पब्लिक यूनाइटेड होती है तब वो बहुत ताकतवर बन जाती है और वो अपने शत्रु का मुकाबला कर सकती है। उस ज़माने में छुआछूत बहुत था, जाति, धर्म, रंग, रूप, स्टेटस का भी बहुत भेदभाव था। तो उस भेदभाव के कारण लोग आपस में बटे हुए थे। कोई जाति पे बटा हुआ है, कोई धर्म से बटा हुआ है, कोई अपने धन और कोई अपने दारिद्र्य के कारण अलग हो रहा है लोगों से। और उन सभी लोगों को उन्होंने एकत्रित किया और अपने शत्रु के सामने खड़ा कर दिया, जिससे शिवाजी महाराज को बहुत फ़ायदा हो गया। उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि आपको इनजस्टिस के आगे खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को इनजस्टिस के आगे खड़े रहने की ताकत दी कि अगर आप अत्याचार को सहोगे चुपचाप तो आप ही अपने सबसे बड़े अत्याचारी होगे। यू विल बी डूइंग इनजस्टिस टू योर सेल्फ। ओके, सो यू शुड नॉट tolerate any injustice done to you and also not tolerate the injustice done to other। तो उन्होंने लोगों को बहुत स्ट्रांग बनाया, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने का काम किसने किया? समर्थ रामदास जी ने, राइट। सो द रोल प्लेड बाय डिफरेंट संत, डिफरेंट सेंट्स that came from the different backgrounds of the society, right, जैसे मैंने पहले बताया, उन सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी किया था फॉर शिवाजी महाराज। कैसे? उन्होंने सबको यही, सभी संतों की एक ही सीख थी कि आपस में मिल बांट के रहो, झगड़ा झगड़ी मत करो, लोगों को डिवाइड मत करो, जिसे ज़रूरत है उसे आप मदद कीजिए, राइट। इसी के कारण लोग क्या हुए? यूनाइट हुए, लोग यूनाइट हुए। उनमें अपने धर्म के प्रति रिलीजियस वंस अगेन बिकेम अ थिंग टू रेस्पेक्ट एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज बॉर्न। लोगों में अपने धर्म के प्रति फिर से आदर भाव निर्माण हुआ। वो अपने धर्म को लेके बहुत जागरूक हुए और बहुत सचेत हुए कि नहीं, अभी हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है। क्योंकि तभी जो मुगल्स थे शिवाजी के महाराज के टाइम पे, वो अब हमारे मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे थे। तो सभी संतों ने लोगों को सिखाया कि अपने धर्म से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, भगवान पे विश्वास और भक्ति करो। इसी कारण लोगों में एक सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनने की एक भावना जागृत हुई और लोगों ने शत्रु के सामने मुकाबला करने के लिए खड़ा रहने की हिम्मत आई। और यही एक जो बड़ा कार्य, एक बैकग्राउंड में जो काम चल रहा था शिवाजी के पहले से, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी, श्री चक्रधर स्वामी, संत एकनाथ, संत नामदेव, ये सब शिवाजी के पहले वाले संत हैं। तो इन संतों ने जो भी काम किया था बैक स्टेज या पहले करके रखा था, वो शिवाजी महाराज को बहुत काम आया टू फाइट फॉर द स्वराज की स्थापना में शिवाजी महाराज को ये बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। होप विद दिस we come to an end to our chapter. Hope you have understood it, my explanation. If you have liked my explanation, please like my video, share it and subscribe it. Do not forget to click on the icon of bell so that you will get my latest study videos. That's all for today. Take care. Bye bye. Thank you very much.